Hey, hello guys, welcome back to my channel. My name is Sagar Prajapati, and in this video I will be talking about the roadmap of Azure Data Engineering. So before into the video, I would like to start with the architecture of Azure Data Engineering, what tools we use in Azure Data Engineering part, and what are the language we are using in Azure Data Engineering. So let me share my screen and then I will let you know. Okay, so if you can see here, we have this architecture present over here. Okay, we have this architecture. If you can see, we have the source layer, we have the extraction layer, we have a incubation layer, reporting DB, and then we have a reporting. And in between that, we have a model also, and then we have a ADLS layer. So what actually happens in Azure Data Engineering or data engineering कि हम लोग के पास data source में present होता है. That could be the on-premise system, that could be the cloud storage, that could be the REST API, that could be a model or anything. Okay, so let's say we have this source location and we want to get our data, or we can say file, maybe CSV file, Excel file, Parquet file, and so on. तो वो जो डेटा होता है सोर्स में, we have to take a copy of that data into our layer. So वो लोग हम लोग काम करते हैं ADF pipeline से. We use ADF pipeline to do that activity and we call it extraction. Okay. So ADF से हम लोग क्या करेंगे, डेटा को कॉपी करेंगे from one place to another and then we put into the ADLS location. ADLS, there are two kind of storage. One is Gen 1 and Gen 2, but today we are using Gen 2 only because it has new properties of better than Gen 1. So हम लोग Gen 2 में डेटा को स्टोर कर लेते हैं. ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. बहुत से लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस में ही स्टोर करते हैं डेटा को फ्रॉम सोर्स. तो अभी क्या किया हम लोगों ने ADLS में अपना डेटा सेव कर लिया, राइट, विद द हेल्प ऑफ ADF. देन व्हाट वी डू, वी यूज Databricks. ठीक है, अब Databricks में वी लोड दैट डेटा एंड वी क्लीन दैट डेटा with the help of some commands, with the help of some languages, and then we create a dimension and fact table on top of our data which we have sourced it. Okay, so that is done. Once it is done, then we dump that data into Azure SQL DB, or we could say Azure Data Warehouse using a Databricks or even using a ADF pipeline also we can do that. So वो चीज वहां पे dump डेटा हम लोगों ने dump कर दिया and then what we do, we create a Power BI report on top of Azure Database or Azure Data Warehouse. We can say sometimes we create a model on top of Azure Database or Azure Data Warehouse and then we create the Power BI report. तो it is up to us कि हम लोग को Power BI use करना है डायरेक्ट, कि हम लोग को टेबलर मॉडल और SSAS मॉडल एंड AAS मॉडल यूज करने हैं कि नहीं. It depends on the project कि which technology you have to use. Sometimes here we use Logic App, Power Apps also to do some automation related things. Okay, so that is done. I hope that is clear to you guys. Key sourcing क्या होता है, extraction and incubation, reporting, DB reporting, and so on. These technologies, if you know, then you easily become a Azure Data Engineering. So now let me do one thing is that let me okay. Give me a moment. Yeah, now you can see I have mentioned here some skills, that is Python, SQL. These are two languages and you should know intermediate. So you should not like only basic से काम नहीं चलने वाला यहाँ पे. So you should know intermediate level and then you should know what is Azure Cloud. बेसिक आपको जानना है. देन Azure Storage Account में बेसिक चीजें आपको जाननी है. And then if I move on to Azure Data Factory, then you should know till intermediate level. क्योंकि ADF है ही बहुत easy.
ADF में बहुत चीजें टफ नहीं होती हैं, बहुत ही इजी है ADF इफ आई कंपेयर विद अदर टूल्स। सो ADF में आपको इंटरमीडिएट लेवल तक जानना है। Then if you move on to Azure Databricks, then you should know till intermediate level. Let's say you should know how to read different type of files, and then you should know batch processing. You should know, some optimization technique of Spark, let's say broadcast join, AQE, and like we have many things we will talk about in the next minutes, in next couple of minutes. So इतना तो आप लोग को जानना है। देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा वेयरहाउस एंड डेटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट। सो ये भी आप लोग को बेसिक प्लस इंटरमीडिएट, अगर बेसिक भी आपको पता है तो गुड टू लक, ओके है, बट इंटरमीडिएट अगर आप लोग जान लोगे, समझ लोगे, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, सो ओके, सो इसके बाद हम लोग का पावर बीआई आता है। पावर बीआई में हम लोग को बेसिक आना चाहिए, लॉजिक ऐप भी बिल्कुल बेसिक आना चाहिए, एंड देन वी शुड नो डेवऑप्स, एजोर डेवऑप्स रिलेटेड थिंग्स आल्सो, दैट इज अ बेसिक लेवल और ओनली कि CI/CD पाइपलाइंस क्या होती हैं, आपने कोड तो लिख लिया, देन इफ यू वांट टू डिप्लॉय इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, देन हाउ वुड यू डू दैट। ओके, सो वो चीजें भी आप लोग को यहाँ पे आनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं पाइथन में। सो इसका लेवल है इंटरमीडिएट। यू शुड नो वेरिएबल, यू शुड नो कंट्रोल स्टेटमेंट्स, यू शुड नो कंडीशंस स्टेटमेंट लाइक if else, condition statement if else, right? And then you should know list, tuple, set, dictionary। ये चार चीजें you should know very well। लाइक लिस्ट में डिफरेंस क्या है, टपल में डिफरेंस क्या है, सेट में डिफरेंस क्या है, डिक्शनरी में डिफरेंस क्या है। इफ आई गिविंग अ डेटा सेट, सो यू हैव टू चूज which data structure would you use। is it dictionary, it is list or tuple, and what are difference between these four, among four। Okay, and then you have to switch to functions, very important। So whenever you are writing a code, you should write inside a function। Okay, def function name, and like we have a different parameters over there। तो वो चीजें भी आप लोग को जाननी है। एंड देन मूव ऑन टू ऊप्स कॉन्सेप्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, जो आपने जावा में पढ़ के रखा होगा, तो सेम चीज यहीं पे है, बट आपको इसके सिंटैक्स एंड यूज कहाँ कहाँ करना होता है वो सब आपको आना चाहिए। एंड देन वी हैव एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि कुछ हमारा कोड अगर फेल हो जाता है तो उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग उसमें कैसे लगानी है कि हमारी पाइपलाइन, हमारी जॉब एंड ना हो जाए, वो कंटिन्यू कर जाए विद सम डिफरेंट in different job or in the subsequent job or subsequent pipeline। तो वो चीजें आप लोग को यहाँ पे आनी चाहिए। एंड देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल इनपुट आउटपुट। तो हमारी फाइल अगर दी गई है तो उसको आप ओपन कैसे करोगे, उसको उसमें इनपुट कैसे डालोगे, उसका आउटपुट कैसे लोगे, रीड कैसे करोगे, राइट कैसे करोगे, अपेंड कैसे करोगे, वो सब चीजें आप लोग को आनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पाइथन में आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको कॉन्सेप्ट आ गया, इट मीन्स आप इस पाथ का भी इससे रिलेट कर सकते हो कि हाँ यार मल्टी थ्रेडिंग ये होता है। तो इतनी चीजें अगर आपको आ गई तो यू आर वेरी गुड। एंड देन इसके बाद आपको गीक्स फॉर गीक्स और दूसरे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है नेट पे, वहाँ पे जाके, उन वेबसाइट पे जाके प्रोग्रामिंग कर लो, हैंड्स ऑन कर लो इसकी। मतलब ये नहीं सिर्फ हमने सिंटेक्स याद कर लिया और हमारा काम हो गया, ऐसे नहीं। आप लोग इसकी हैंड्स ऑन करो, ताकि आप लोग को भी आइडिया हो जाए कि आपको लिस्ट कहाँ लगाना है, टपल कहाँ लगाना है, फॉर लूप कैसे लगाएंगे। एंड इफ यू नो लैम्डा एक्सप्रेशन, लैम्डा फंक्शन अगर आप लोग यहाँ पे जानते हो तो वो भी आप इस पे कवर कर लेना। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट अगर आपको वो चीज आती है तो वहाँ पे आप कवर कर सकते हो। देन विल मूव ऑन टू SQL इंटरमीडिएट। सो हेयर यू शुड नो DML, DCL, DDL कमांड्स। ठीक है, क्रिएट टेबल कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं डेटा टेबल में, डिलीट कैसे करते हैं, ट्रंकेट कैसे करते हैं, ड्रॉप क्या होता है, अपडेट कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, अल्टर कैसे करते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे आपको करनी पड़ेंगी। और सबका आपको जो सिंटेक्स होता है वो आना चाहिए, याद होना चाहिए। ये नहीं कि आपको सिर्फ क्रिएट टेबल का सिंटेक्स पता है, इंसर्ट का पता ही नहीं है, तो वो सब चीजें यहाँ नहीं चलेंगी। देन यू शुड नो ऑल टाइप ऑफ कांस्टेंट, कितने भी कांस्टेंट होते हैं सीक्वल में, वो आपको आने चाहिए। एंड देन यू शुड नो वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेयर ग्रुप बाय हैविंग। हर इंटरव्यू में अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपसे वेयर डिफरेंस बिटवीन वेयर ग्रुप बाय एंड हैविंग में सवाल जरूर आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। एंड देन यू शुड नो मिन मैक्स सम काउंट एवरेज फंक्शन, कौन से कब लगाने विद द हेल्प ऑफ हैविंग ग्रुप बाय एंड वेयर क्लॉज। देन ज्वाइंस जो होते हैं लाइक इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, ये 5 और 6 ज्वाइंस में डिफरेंस क्या होता है एंड कौन से ज्वाइन कब यूज करने होते हैं। अगर देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 2 टेबल्स दी गई हैं और ये हमारा आउटपुट है, अब आप बताओ इसमें आप कौन सा ज्वाइन यूज करोगे कि हमें ये वाला आउटपुट मिल जाए, राइट। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो यू शुड नो कि डिफरेंस क्या होता है इनर, लेफ्ट, राइट, सेल्फ, क्रॉस एंड फुल आउटर ज्वाइन में। देन आप विंडो फंक्शन जानो कि रो नंबर क्या होता है, रैंक, डेंस रैंक, टाइल भी होता है, मतलब बहुत से होते हैं। लाइक ये 3 तो बेसिक हैं, ये आपको आने चाहिए, राइट। एनालिटिक्स फंक्शंस आपको आने चाहिए और वी कैन से विंडो फंक्शंस, ये सब अगर आपको आता है। इन देखो एक सबसे बेस्ट क्वेश्चन आता है कि रैंक एंड डेंस रैंक में डिफरेंस क्या है फ्रेशर के लिए, और आपको लाइक एक एक एग्जांपल दे दिया जाएगा, एक टेबल दे दी जाएगी, उसमें वो बोलेंगे कि आप रैंक लगाओ एंड डेंस रैंक लगाओ और इसका आउटपुट मेरे को बताओ। तो वो क्वेश्चन मस्ट है। एंड देन यू शुड नो सीटी व्यू, सीटी कब बनाना चाहिए, व्यू कब बनाना चाहिए, स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, इसे कैसे कॉल करते हैं, एंड वाई टू क्रिएट अ स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, व्यू कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के व्यू होते हैं बेसिकली, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन सा कब बनाओगे आप। एंड देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग, तो क्लस्टर इंडेक्स होता है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाता है, बट अगर आप इसको स्किप भी कर दो तो चलेगा। बट अगर आपको इसका बेसिक पता है कि इंडेक्सिंग हम क्यों करेंगे, हम लाइक क्लस्टर इंडेक्स कब यूज करेंगे एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स यूज कब करेंगे, तो चलेगा। मतलब एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है इंटरव्यूअर के ऊपर कि हाँ इसको इंडेक्सिंग भी नॉलेज है। देन हैंड्स ऑन कर लो सीक्वल क्वेरी क्वेश्चंस में। ठीक है, लाइक आपको डेटा सेट आप कहीं से ले लो, बहुत से प्लेटफॉर्म बने हैं, वहाँ पे जाओ प्रैक्टिस करो, हैविंग क्लॉज वेयर ज्वाइंस के एंड मल्टीपल फंक्शंस वहाँ पे यूज करो। सब स्ट्रिंग फंक्शंस भी होते हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस भी होते हैं, वो सब वहाँ पे आप यूज करो एंड कोशिश करो कि यार आप उसको सॉल्व कर पाओ विद इन सर्टेन टाइम। एक आपको टाइम भी लेना है कि लाइक ये इस क्वेश्चन में आप 5 मिनट्स ही दे रहे हो, ना कि आप लाइक 15 मिनट्स 20 मिनट्स ही एक क्वेश्चन में दे रहे हो, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। तो उसको भी आपको देखना है कि लाइक टाइम आपका कम लग रहा है एंड क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो पा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, टू बी ऑनेस्ट टाइम लगेगा। लाइक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 5 मिनट्स लग सकते हैं, 10 मिनट्स लग सकते हैं, 20 मिनट्स भी लग सकते हैं, बट उस क्वेश्चन को समझो, उस क्वेश्चन को ये जानो कि वाई आई हैव यूज दिस मेथड ओवर हेयर, वाई आई हैव यूज दिस कॉन्सेप्ट ओवर हेयर, कुछ तो रीजन होगा, राइट। सो वो सब चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो आप ये मान लो ये पाइथन का आप लाइक 5 to 6 days में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। इफ़ यू नो जावा, इफ़ यू नो एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन ये बहुत ही ईजी है, कुछ इसमें बहुत टफ चीज़ें नहीं हैं। एंड देन SQL विल आल्सो टेक लाइक 5 to 6 days टू लर्न और टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। एंड उसके बाद क्वेश्चंस आपको रोज लगाने पड़ेंगे, इसके भी, SQL के भी एंड पाइथन के भी। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका ब्रेन उतना ही ओपन होगा और आप समझ पाओगे कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट कब कब लगाने हैं। देन विल मूव ऑन टू एजोर क्लाउड। उसमें क्या होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ सर्विसेज एजोर प्रोवाइड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IaaS, PaaS एंड SaaS। एंड देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मशीन, उसे ये क्या होती है, कैसे बनाते हैं, और इसके जो प्रॉपर्टीज एडवांटेजेस, वो सब चीज़ें यहाँ पे जानना पड़ेगा। Then we have we have a resource group, tenant and subscription in Azure। ये क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या होते हैं, रिसोर्स ग्रुप कब बनाते हैं, टेनेंट कितने टाइप के होते हैं, सब्सक्रिप्शन कितने टाइप के होते हैं, कौन सा सब्सक्रिप्शन, लाइक एक सब्सक्रिप्शन में कितने रिसोर्स ग्रुप बनते हैं, एक टेनेंट में कितने सब्सक्रिप्शन बनते हैं, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, वो सब चीज़ें आप लोग को जानने की जरूरत है। ओके, इतना आप लोगों ने कवर कर लिया। तो आपको क्या करना है, एजोर स्टोरेज अकाउंट पे मूव कर जाना है। ब्लॉब क्या होता है, हम इस ब्लॉब को क्यों यूज करते हैं, ब्लॉब में आप किस टाइप का डेटा वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। आप वीडियो स्टोर कर सकते हो, इमेज स्टोर कर सकते हो, एक्सेल फाइल स्टोर कर सकते हो, एंड एनी अदर टाइप ऑफ डेटा फाइल यू कैन स्टोर इट ओवर देयर। सो कितने टाइप के ब्लॉब होते हैं,
ठीक है। एंड व्हाट इज ADLS Gen 2, व्हाई टू यूज इट। Gen 2 अब यहाँ पे क्या हो गया, ब्लॉब भी एक फाइल सिस्टम हो गया, एंड Gen 2 क्या हो गया, तो Gen 2 में किस टाइप का डेटा हम स्टोर करेंगे, ब्लॉब में किस टाइप का डेटा यूज करेंगे, एंड बेसिक्स ऑफ टेबल, क्यू एंड फाइल, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब बहुत ही डीप में नहीं होना चाहिए, बट हाँ बेसिक आपको पता है कि यार ब्लॉब ये होता है, ब्लॉब ऐसे बनाते हैं, ADLS Gen 2 ऐसे बनाते हैं, इसमें इस टाइप की फाइल्स हम स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं वीडियो को स्टोर करूँ ADLS Gen 2 में तो क्या होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सो ये सब क्वेश्चंस ना आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। वहां पर पूछा जाता है कि Gen 2 आप कब यूज करोगे, उसकी प्रॉपर्टीज बताओ, एडवांटेजेस बताओ, तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। Then we'll move on to Azure Data Factory. Here you have to like know what is Azure Data Factory, what is IR. ये बहुत ही like top most interview question है, what is IR, इंटीग्रेशन रन टाइम कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। तो उन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे क्रिएट किए जाते हैं और कब कब क्रिएट किए जाते हैं। एंड देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज लिंक लिस्ट, लिंक सर्विसेज एंड डेटा सेट। तो लाइक यू नो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ये कैसे बनते हैं, ठीक है, और ये हम लोग क्यों बनाते हैं। देन मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रिगर्स वी हैव, शेड्यूल ट्रिगर, इवेंट बेस्ड ट्रिगर एंड टम्बलिंग विंडो ट्रिगर। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है और कौन सा कब आप यूज करोगे। देन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज एंड देयर यूसेज, like we have for each activity, we have until activity, we have switch activity, we have wait activity and so on, like we have multiple things, right। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए एजोर डेटा फैक्ट्री में। मतलब बहुत डीप में नहीं जाना है आपको, बस आपको अगर बेसिक एजोर डेटा फैक्ट्री का पता है तो इनफ है। क्योंकि एजोर डेटा फैक्ट्री में मैंने लाइक 10+ इंटरव्यू दिए हैं और उसमें बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं आए मेरे को, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज डेटा फ्लो। डेटा फ्लो आपको पता होना चाहिए कि डेटा फ्लो होता क्या है। अगर आप बिल्कुल बेसिक भी आप वहाँ पे कर सकते हो कि आप वहाँ पे फिल्टर कैसे करोगे डेटा फ्लो में, एंड बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं। आप अगर 2-3 भी वहाँ पे समझ लोगे और इंटरव्यू में आपको कोई पूछा जाए तो आप कम से कम ये बोल सकते हो कि हाँ आई नो डेटा फ्लो, थोड़ा बहुत मुझे आता है एंड देन आई विल लर्न इट। तो ये सब चीज़ होने के बाद आपको एजोर डेटाबेस में मूव कर जाना है। एंड देन यहाँ पे स्पार्क क्या होता है, DBFS क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या है स्पार्क का, स्पार्क एक्चुअली में काम कैसे करता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, व्हाई इट इज डिफरेंट डिफरेंट देन हैडूप, क्या उसमें एडवांटेजेस थे, क्या वहाँ पे लूप होल्स थे, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन आ जाता है आर्किटेक्चर ऑफ स्पार्क बताओ, नेम नोड क्या होता है, वर्कर नोड क्या होता है, ड्राइवर नोड क्या होता है। वो सब चीज़ें अगर आप जान लोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, अगर आप फ्रेशर हो तब भी। क्योंकि क्या होता है कि फ्रेशर के लिए भी ये सब क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल डीप में जाना है स्पार्क आर्किटेक्चर में भी, बट एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि काम कैसे हो रहा है ना। देन व्हाट इज स्कोप, व्हाट इज माउंट पॉइंट, व्हाट इज की वॉल्ट हम क्यों यूज करते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। आप कौन किस टाइप के पासवर्ड वहाँ पे स्टोर करोगे, रिन्यू कैसे करोगे पासवर्ड को, आप पासवर्ड को, कीज को, सीक्रेट्स को एंड सो ऑन। देन बेसिक ऑफ पाई स्पार्क, मतलब पाई स्पार्क बोले तो पाई प्लस, पाई मीन्स पाइथन एंड स्पार्क मीन्स स्पार्क। तो इन दोनों का एक API है ये, और सिंपल टर्म में बोलें कि लैंग्वेज है। वहाँ पे आप क्या करते हो कि डेटा को प्रोसेस करते हो स्पार्क में विद द हेल्प ऑफ पाई स्पार्क। तो वो सब आपको जानना है कि ज्वाइंस क्या होते हैं, रीड कैसे करेंगे डेटा को, राइट कैसे करेंगे, एंड देन व्हेन कब लगाएंगे, इन कब लगाएंगे, हैविंग कब लगाएंगे। वो सब चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आपको सीक्वल में बताई थी, सेम चीज़ आपको यहाँ पे पाई स्पार्क की मदद से सीखनी पड़ेंगी और सीख होनी भी चाहिए, बिकॉज ये तो बेसिक है। एंड देन यू शुड हैंड्स ऑन लोडिंग एंड राइटिंग डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट। So let's say like we have packet file, we have Avro file, we have ORC file, CSV file, JSON file, बहुत टाइप की फाइल फॉर्मेट होते हैं। तो उन तीनों में इन सब में डिफरेंस क्या होता है, एंड कौन सी फाइल आप कब यूज करोगे, कौन सा फॉर्मेट आप कब यूज करोगे, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी हैव दिस क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड देन वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी टाइप ऑफ क्लस्टर डू वी हैव एंड विच वन वेयर टू यूज।
सो क्लस्टर 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, एक जॉब क्लस्टर होता है, इंटरेक्टिव एंड पूल। सो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, आप कौन सा क्लस्टर कब यूज करोगे, वो सब चीजें क्वेश्चन पूछी जाते हैं। देन वी हैव अ पार्टीशन बाय, रीपार्टीशन, कोलेस। तो इन तीनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए। पार्टीशन बाय आप कब यूज करोगे, रीपार्टीशन कब यूज करोगे, कोलेस कब यूज करोगे। ब्रॉडकास्ट वेरिएबल क्या होते हैं, एक्यूमुलेटर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स क्या होते हैं, सेम चीजें SQL की। then I already covered this question, and then we have when to do cache and persist. कैशे कब करोगे, persist कब करोगे, डेटा फ्रेम को और टेबल को। देन यू शुड नो हाउ टू क्रिएट अ डायमेंशन टेबल एंड फैक्ट टेबल यूजिंग PySpark or Spark SQL. Then we have a concept of managed table and external tables. That is also the important question. So you should know about this. And then we have what is delta tables, what is SCD, so changing dimension क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। And then set up end-to-end job using job workflow of Databricks और ADF pipeline. तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे प्रोसेस यहाँ पे हम लोग करेंगे टू सेटअप end-to-end job. सो दैट इज, इफ दैट इज डन, देन हम लोग मूव कर जाएंगे डेटा मॉडलिंग, डेटा वेयरहाउस कॉन्सेप्ट में। देयर वी विल सी व्हाट इज डेटा मॉडलिंग, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ डेटा मॉडल्स, explain the fact tables and the fact and fact tables, differentiate between the fact tables and a dimension table. Then we have a differentiate between data warehouse and database, difference between database, data warehouse, data mart. ये बहुत ही important question है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड देन वी हैव लिस्ट ऑफ वेरियस डिजाइन स्कीमा इन डेटा मॉडलिंग, ये आपको आना चाहिए। एंड देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लेक स्कीमा, डिफरेंस पता होना चाहिए। एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओलैप एंड OLTP, ये चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। देन यू शुड नो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक भी पता है तो ठीक है, चलेगा, बट पता होना चाहिए व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ कार्डिनल रिलेशनशिप्स एंड सो ऑन। लाइक ये तो मैंने आपको बेसिक बताया है, इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं, बट मेरी नॉलेज में, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, और इतने ही पूछे जाते हैं। अब जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप 5 ईयर्स के हो जाओगे, 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस, तो आपका क्वेश्चन लेवल भी चेंज होते जाएंगे, ठीक है। इट इज दीज क्वेश्चंस आर फॉर फ्रेशर्स और स्पेशली 2-3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस गाइस who want to become this data engineer. So ये कॉन्सेप्ट हो गया। एंड देन यू शुड नो पावर BI। अब पावर BI में आपको क्या करना है, देखो यार, पावर BI होता है BI टूल, रिपोर्टिंग टूल होता है। अब डेटा इंजीनियरिंग के लिए पावर BI सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको आता है पावर BI तो आप अपनी प्रोफाइल में फुल डेटा इंजीनियर लिख सकते हो, फुल स्टैक डेटा इंजीनियर लिख सकते हो। इससे क्या पड़ेगा, आपके रेज्यूमे पे इम्पैक्ट अच्छा आएगा कि लाइक किसी बंदे को बैकएंड भी आता है, वो बंदा फ्रंट एंड भी आता है। बिकॉज व्हाट हैपनिंग इन डेटा इंजीनियरिंग, हम लोग सिर्फ डेटा को अपने डेटाबेस में नहीं रखते हैं, उसके बाद हम लोग उसको विजुअलाइज भी करते हैं यूजिंग टैबलू, पावर BI, क्लिक और जो भी टूल्स होते हैं पावर रिपोर्टिंग की। ओके, तो अगर आपको पावर BI भी आता है, बेसिक ही आपको आना है, उसमें बहुत बहुत टफ चीजें नहीं आनी है। अगर आपको बेसिक भी आता है तो आपके लिए एक एडवांटेज हो जाएगा, आपके रेज्यूमे में इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका रेज्यूमे सेलेक्ट होने में आसानी होगी। Then here you have to use what is Power BI, then what is report, dashboard, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, measures क्या होते हैं, कैसे measures बनते हैं, what is calculated columns, and then how to create a relation between tables in Power BI, which chart or visual should be used in the giving data set। तो ये मेरे से एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया था कि मुझे ये डेटा सेट दिया गया, अब इसमें बताओ आप कौन सा चार्ट और कौन सा विजुअल यूज करोगे। तो ये आप कर सकते हो। एंड देन व्हाट इज डेक्स, डेक्स थोड़ा बहुत आप सीख लो। एंड देन डिजाइन अ पावर BI रिपोर्ट यूजिंग डमी डेटा सेट, लेट्स से कोविड-19 का डेटा सेट आप नेट से कहीं से भी उठा सकते हो, गिटहब से उठा सकते हो, वेबसाइट से उठा सकते हो, और उसकी मदद से आप एक छोटी सी पावर BI आप वहाँ पे क्रिएट कर लो। छोटे छोटे आप मेजर्स बनाओगे, तो आप छोटे छोटे आप चार्ट बनाओगे, तो आपको समझ में आने लगेगा। एंड देन इफ वी मूव ऑन टू लॉजिक ऐप, तो लॉजिक ऐप क्या होता है, हम कब यूज करते हैं, हाउ टू यूज लॉजिक ऐप इन ADF, ये अच्छा क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि बहुत लोग को पता ही नहीं होता है, राइट। एंड देन हैंड्स ऑन स्मॉल ऑटोमेशन टास्क टू सेंड ईमेल्स टू यूजर व्हेन ADF जॉब सक्सीडेड। तो आप ये छोटा सा छोटा सा प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास लॉजिक ऐप अवेलेबल है
free tier में I do not know whether they provide a logic app, but we can use it. I hope so. तो वहाँ पे जाके आप इसको बनाओ छोटा सा, आप समझो कि हाँ यार मेल कैसे भेजे जा रहे हैं, आप अपना जीमेल अकाउंट भी यूज कर सकते हो वहाँ पे, एंड आप फिर उसको इस लॉजिक ऐप को ADF से ट्रिगर करो, यूज सम शेड्यूल ट्रिगर और इवेंट बेस्ड ट्रिगर, समथिंग लाइक दैट। तो वो सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करो, हैंड्स ऑन करो, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, इजी है, बहुत टफ चीज़ें नहीं है, बस इसका आपको पता होना चाहिए लॉजिक ऐप क्या होता है, और थोड़ा बहुत आपको उसके अंदर भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आई होप सो, एंड लाइक एक्टिविटीज़ होती हैं और तरह तरह की चीज़ें होती हैं, आपको वो चीज़ एक्टिविटीज़ होती हैं, कनेक्टर्स होते हैं, तो 3-4 कनेक्टर में भी आपने अगर काम करके रखा है तो ये एक बेनिफिशियल चीज़ है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Azure DevOps। सो Azure DevOps क्या होता है, CI/CD पाइपलाइंस क्या होती हैं, व्हाट इज सर्विस कनेक्शन, हाउ टू क्रिएट अ सर्विस कनेक्शन, व्हाट इज आर्टिफैक्ट, बिल्ड एंड हैंड्स ऑन ADB CI/CD पाइपलाइन, और वी कैन से ADF CI/CD पाइपलाइन। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए Azure DevOps में। अब देखो क्या होता है कि यहाँ तक तो आपने पाइपलाइन अपनी सेटअप कर ली इन डेव एनवायरनमेंट, और लेट्स से अपनी लोकल में ही आपने सेटअप कर ली। नाउ यू हैव टू मूव all these tools code into the production environment। आप मैनुअली नहीं करोगे, राइट, आप ऑटोमेशन का यूज करोगे। तो ऑटोमेशन का आप जब यूज करोगे तो आप Azure DevOps यूज करोगे, Jenkins यूज कर सकते हो, बट अगर आप Azure डेटा इंजीनियरिंग की फील्ड में हो तो आप Azure के ही प्रोडक्ट यूज करना चाहोगे, राइट। तो इसके लिए आपको ये CI/CD या मतलब छोटा मोटा पता होना चाहिए, सर्विस कनेक्शन क्या होता है, आर्टिफैक्ट क्या होते हैं, बिल्ड्स क्या होती हैं, रिलीज पाइपलाइंस क्या होती हैं। और आप जब ये हैंड्स ऑन करोगे ADB CI/CD पाइपलाइन में तो आपको समझ में आ जाएगा कि CI/CD क्या है, आर्टिफैक्ट क्या है, बिल्ड्स क्या है, रिलीज क्या है, सर्विस कनेक्शन क्या होती हैं। आई होप सो सर्विस कनेक्शन आप ADB CI/CD पाइपलाइन में नहीं समझ पाओगे, यू शुड क्रिएट ADF पाइपलाइन और सम डिफरेंट पाइपलाइन, तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। सो ये जो भी मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट दी है ये मेरे एक्सपीरियंस पे है, एंड आई बिलीव कि इतना ही पूछा जाता है, एंड हो सकता है कि यहाँ पे कुछ छूट गया हो, कुछ मिस हो गया हो मेरे से, बट अगर आप इतना भी कर लोगे तो विद इन लाइक 3 to 4 months maximum you will get a job in Azure data engineering field। तो बेसिकली ये फ्रेशर्स के लिए था, 2 years एक्सपीरियंस वालों के लिए था। तो ऐसा नहीं है कि लाइक अगर कोई यहाँ पे 3 years के एक्सपीरियंस वालों के लिए है तो वो लोग नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, बट आपको एक क्योंकि लाइक आपको एक जर्नी पता होनी चाहिए, रोड मैप पता होना चाहिए कि आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे तैयार करनी है, उसके बाद ही हम लोग एक स्टेप ले सकते हैं। तो मैंने इतना बताया है, एंड ये वाला जो डॉक्यूमेंट है मैं वो शेयर कर दूंगा अपने अपने यूट्यूब वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक्डइन पे भी मैं अपडेट कर दूंगा इस चीज़ को। एंड आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, और बहुत ही आसान है एजोर डेटा इंजीनियरिंग। हम लोग को लगता है कि हम लोग को बहुत चीज़ें सीखनी है, ऐसा मत करो। एक चीज़ सीखो, रेज्यूमे में लिखो, इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दो, फिर सेकंड चीज़ लिखो, वो इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दो, थर्ड चीज़ लिखो। इससे क्या होगा कि आपको भी क्वेश्चंस मालूम चलने लगेंगे कि हाँ सीक्वल में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेटा फैक्ट्री में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अरे मुझे ये कॉन्सेप्ट याद करना है, मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझना है। तो ऐसे आप करते जाओगे तो देखो स्टार्टिंग में आप फेलियर आपको फेस करना पड़ेगा, आप फेल होगे, आप ऐसा नहीं है कि आप आज इंटरव्यू दोगे आप निकाल लोगे, बहुत ही कम कम चांस होता है कि यार पहली बार में कोई बंदा निकाल ले। ठीक है, नई नई फील्ड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो नई फील्ड की, राइट, तो थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, टाइम लगेगा बट आपका हो जाएगा सिलेक्शन। सो जितना चीज़ें नहीं सीखनी है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस में नहीं जाना है, इंटरमीडिएट लेवल तक रखो, सब चीज़ें एडवांस के पीछे भागोगे तो हो सकता है थोड़ी सी परेशानी आपको फेस करनी पड़े। सो ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में, एंड मूविंग फॉरवर्ड आई विल बी क्रिएटिंग मोर कंटेंट ऑन दिस एजोर डेटा इंजीनियरिंग फील्ड, एंड okay, that's it for today's video. I hope you have understood, and okay, thank you.